Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you are aware that we are currently in the process of completing our class 12 physics for NEET 2025 and at this moment we are focusing on the topic of moving charges and magnetism. ठीक है, in the previous lecture of this chapter we were able to complete our syllabus up to the Ampere-Circuitel's law in which we studied some of the basic applications of the Ampere-Circuitel law along with the process by which we can assign a positive or negative sign to a current while dealing with the Ampere-Circuitel law. ये चीजें हमने in the previous lecture हमने सीख ली थी. ठीक है, so in today's lecture we're going to move on to the next topic of this chapter and that is the solenoid. ठीक है, so before we start with the solenoid let me just give you kind of a warning regarding solenoid. देखिए, solenoid में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, they only remember the formula चाहते हैं पेपर में and if some kind of a difficult question, a conceptual question is asked from them, they find that question very difficult because वो क्या करते हैं, उनके लिए solenoid सिर्फ एक formula होता है. ठीक है, so we are not going to make that mistake. If we are going to complete a solenoid, we are going to complete a solenoid completely from point A to point B. हम पूरे solenoid को अच्छे से cover करेंगे. ठीक है, we are not going to skip anything. ठीक है, so on that note let's just start with the solenoid. ठीक है, कि solenoid क्या होता है and after that slowly and gradually we'll move towards the formula कि हम solenoid के formula को study करेंगे. ठीक है, so let's just start with solenoid. Solenoid को study करते हैं. So remember, the solenoid is nothing but a piece of instrument. Solenoid is nothing but a piece of instrument which is used to generate magnetic fields. इस चीज का आपको ध्यान रखना है, which is used to generate magnetic fields. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ड यूज करता हूँ आपके लिए, magnetic field. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. ठीक है, कि ये यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि what kind of question that can be asked from you in the examination. What the examiner can say that solenoid is an instrument which is used to generate electric field, magnetic field, both electric or magnetic field, या none of the above. You should always remember that the solenoid is used to generate the magnetic field. This kind of question can be asked from you in the examination. ठीक है, let's just move on to the next point. Next point आप इसका स्टडी करते हैं solenoid के केस में. आपको यहाँ पे एक चीज और समझनी है. Let's just look at the इसको बनाया कैसे, जस्ट टू कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द सोलोनॉइड. तो आपको समझना पड़ेगा सोलोनॉइड जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ, सोलोनॉइड्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ an insulating wire. Remember this thing, solenoid consists of an insulating wire. Again in the examination what he can say, the solenoid consists of a conducting wire. nahi, solenoid consists of an insulating wire closely wound together in form of a helix. ये चीज हो गई. और इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि दैट इट्स लेंथ, दैट इज द लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड is very large as compared to diameter. ठीक है, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अगेन मैं रिपीट माय सेल्फ, क्या चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये समझना है कि सोलोनॉइड कंसिस्ट ऑफ अ इंसुलेटिंग वायर नॉट अ कंडक्टिंग वायर. पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. एग्जामिनर कैन से द इंसुलेटर इज मेड ऑफ अ कंडक्टिंग वायर. ठीक है, अगर आप पेपर में ये सोच के जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, वही उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड यू विल मेक सम काइंड ऑफ मिस्टेक. तो उससे हमें बचना है. एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन वी आर गोना कंप्लीट द सोलोनॉइड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. हमें सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में. ठीक है, ओनली देन आवर प्रिपरेशन विल बी कंप्लीट फॉर नीट 2025 because we are targeting more than 150 marks. ठीक है, तो फॉर more than 150 marks आपको ये सब बेसिक क्लैरिटी आपको हर चीज की होनी चाहिए. अदरवाइज 120 मार्क्स का आज के टाइम पे कोई रोल रह नहीं गया. ठीक है, your target should be 180 and only then if you're targeting 180 only then you will be able to score more than 150. ठीक है, so you should always aim high. ठीक है, तो आपको समझ आ गया. द सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ अ इंसुलेटिंग वायर बाउंडेड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स एंड इट्स लेंथ. अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ इज वेरी लार्ज. पेपर में पूछा जा सकता है कि लेंथ इज लेस, लेंथ इज या डायमीटर इज मोर, तो उस चीज का ध्यान रखना है. इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू डायमीटर. आपको इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, फर्दर लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच शुड रिमेंबर रिगार्डिंग द सोलेनॉइड, दैट इज that each turn in a solenoid, should always remember this thing, that each turn in a solenoid can be regarded as a
सर्कुलर लूप, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दैट ईच टर्न, वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, ईच टर्न, ईच टर्न इज रिगार्डेड एज अ सर्कुलर लूप, आपको इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्लीज आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इनको ध्यान रखिए, बिकॉज दीज हेल्प यू टू फेच मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग सोलेनॉइड, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है, इन दिस सेक्शन हम क्या करने वाले हैं, वी गोना लर्न अबाउट द फॉर्मूला कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। फर्दर वी गोना अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, उसकी किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, किस तरह से वैल्यू जो होती है वेरी करती है, एंड हाउ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड बिहेव्स। ठीक है, अब आपको समझिए, फॉर हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, फॉर द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द फ्लो ऑफ करंट इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। तो यानी कि अगर मुझे सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोलेनॉइड से मुझे करंट को पास करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, सो व्हेन करंट इज पास्ड, जब क्या करते हैं करंट को हम वहां से सोलेनॉइड से पास करते हैं, तो आपको एक चीज का तो ध्यान है कि व्हेन द करंट इज पास थ्रू सोलेनॉइड, तो होता क्या है, वहां पे क्या होगा, एंड सिंस ईच टर्न बिहेव्स एज अ सर्कुलर लूप, तो वहां पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो होगी जनरेट होगी। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ सोलेनॉइड, थ्रू अ सोलेनॉइड। ठीक है, when current is passed through a solenoid, then each turn of a solenoid behaves as a circular loop, behaves as a circular loop, जैसा हम ऊपर पढ़ के आए थे और जैसे मैंने आपको बताया है, each point behaves as a circular loop। ठीक है, circular loop carrying current, thus producing a magnetic field। इतनी सी बात आपके लिए क्लियर होगी, दैट ईच टर्न व्हेन करंट इज पास, तो क्या होता है, ईच टर्न बिहेव्स एज अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जनरेट होती है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। इसमें आपको सेकंड पॉइंट आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, द नेट मैग्नेटिक फील्ड, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। फिर आपको क्या होगा, अब हर सर्कुलर लूप क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। उस वजह से जो आपके पास होगी द नेट मैग्नेटिक फील्ड, द नेट magnetic field produced by solenoid, ठीक है, the net magnetic field produced by solenoid is given by the, इस चीज का ध्यान रखिएगा, is given by the vector sum, क्योंकि वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज गिवन एज अ वेक्टर सम। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ magnetic fields produced by each turn, produced by each turn। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नथिंग बट अ वेक्टर सम। ठीक है, these are again I'm repeating myself, these are small points। अभी आपको ये irrelevant लग रहा है, you might be feeling that these points are irrelevant for you, but I'm telling you once again that these are the points which will give you marks in your final examinations। ठीक है, you should remember these points, okay। तो ये वेक्टर सम की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसमें बिहेव करती हैं। लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम्स। ठीक है, हम उसको डायग्राम्स के थ्रू स्टडी करते हैं कि वो कैसे बिहेव करती है। ठीक है, सो इसको देखते हैं एक बार। ओके, सो लेट्स सी कैसे वो बिहेव करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड्स। हम देखते हैं उसकी शेप किस तरह से होती है, एंड हाउ द मैग्नेटिक फील्ड विद द सोलेनॉइड इज जनरेटेड। ठीक है, सो लेट्स जस्ट से दिस इज योर, लेट्स जस्ट से वी हैव सोलेनॉइड लाइक दिस। ठीक है, उसकी शेप को हम स्टडी करते हैं, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड बिहेव करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो अब देखेंगे ध्यान से हम चीजों को। देखिए, this is how the lines of magnetic field behaves। I'm so sorry about this thing, just a minute।
प्लीज़ थोड़ा डायमेंशंस का, सॉरी अबाउट दिस थिंग, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। So this is how the magnetic field lines behave, okay? और जब आप लूप के टॉप पे होते हो, when you are at the top of these loops, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, this is the direction of the magnetic fields, ठीक है। ये है डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू सोलेनोइड दे बिहेव, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसको समझते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से हैं, यहाँ से, दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सोलेनोइड की वो किस तरह से बिहेव करती हैं, ठीक है। सो लेट्स ऑन लुकिंग एट द डायग्राम, जब हम इस डायग्राम पे देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देखना पड़ता है, ठीक है, हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए क्या चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम पहले उसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं, ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सीखना है, इन चीज़ों को आप हवा हवा में पढ़ के पेपर के लिए नहीं जा सकते, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ओके। सो लेट्स जस्ट लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, के फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको ये बोल रहा है, देखिए एट अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ अ सोलेनोइड, एट अ पॉइंट outside of the solenoid, outside of solenoid, ठीक है। The magnetic fields, remember this thing, the magnetic field due to neighboring loops, remember this thing, oppose each other, they don't support but rather they oppose each other, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी पॉइंट के बाहर होते हो, जब आप क्या करते हो, आपका कोई पॉइंट है, इफ अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज आउटसाइड द सोलेनोइड, ठीक है, देन द मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच लूप जनरली अपोज ईच अदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, बट इसी में आपको दूसरा पॉइंट रख लेते हैं, बट व्हाट हैपेंस इज फॉर अ पॉइंट दैट इज लाइंग इनसाइड द सोलेनोइड, बट फॉर अ पॉइंट that is lying inside the solenoid, that is lying inside the solenoid, the magnetic field lines, the magnetic fields are in same direction, those are in same direction, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, फॉर द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड, फॉर द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन सेम डायरेक्शन, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, फॉर द पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द सोलेनोइड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती है, वो जो आपके सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ईच लूप जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, दे अपोज ईच अदर, ओके, बट फॉर द पॉइंट विच इज लाइंग इनसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, वो सपोर्ट करती हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इनकी वजह से होता क्या है, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं, एज अ रिजल्ट ऑफ इट, एज अ रिजल्ट ऑफ इट, the magnetic field, the value of magnetic field, ठीक है, the value of magnetic field outside the solenoid, outside the solenoid becomes weak, becomes weak, becomes weak, whereas the magnetic field, whereas the magnetic field in the interior of solenoid becomes strong and uniform, becomes strong and uniform, acting along axis of solenoid, acting along axis of solenoid,
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। ठीक है, नाउ रिमेंबर एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ सोलेनॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक व्हिच वी हैव स्टडीड टिल नाउ is an assertion and reason question. ठीक है, कैसे? In an assertion and reason he might give you that the value of magnetic field, that the net value of magnetic field outside the solenoid is weak. ये आपके assertion होगा, and what will be the reason for this? The reason for this will be because for the point which is lying outside the solenoid, the directions of the magnetic field, the value of magnetic field due to each loop, they oppose each other. As a result, the value of magnetic field outside the solenoid is weak. इस चीज का ध्यान रखिएगा. So this is the assertion and this is the reason जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया. मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देता हूँ कि because outside this solenoid the magnetic field becomes weak, whereas for the magnetic field the value of magnetic field, ठीक है, the value of magnetic field in the interior of solenoid becomes strong and uniform and is acting along the solenoid. तो चीज का ध्यान रखिएगा. This is the kind of question which can be asked in a assertion and reason के फॉर्म में आपको यहाँ पे समझा जा सकता है. ठीक है, secondly there is one more point. आपको यहाँ पे एक पॉइंट और को समझना पड़ेगा. What will happen if the solenoid is tightly packed? You should remember this thing. When solenoid is tightly packed मतलब आपने उसको बहुत, उसके जो लूप से लूप के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है. That is tightly packed. You should remember this thing. Then what happens when the loop is tightly packed? When my solenoid is tightly packed, what happens then? When a solenoid is tightly packed, in that case, जब आपका solenoid tightly packed होता है, in that case the magnetic field due to current through solenoid will be zero. किसके लिए? For a point outside near the middle of solenoid. ठीक है, and it is very strong and uniform at a point interior of solenoid. So you should remember this thing. Again मैं अपनी पास बात को रिपीट करता हूँ कि होता क्या है. You should remember this thing. When solenoid is tightly packed, if this is the case, तब होता क्या है, अगर आपको solenoid tightly packed होगा, in that case the magnetic field will be zero. किसके लिए? For a point outside. कहाँ पे? Near the middle of solenoid. मतलब if this is your solenoid in which the loops are tightly packed, solenoid is tightly packed, ये आपका tightly packed solenoid है, let's just say. तो for a point which is lying outside but near the middle of the solenoid, middle के पास lie करता है but outside lie कर रहा है, in that point the magnetic field will be equal to zero. ठीक है, और जब आपके अंदर डिस्कस करोगे वही अगर टाइटली बाउंड है तो जो आपका पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, द पॉइंट विच इज लाइंग इनसाइड दिस सोलेनॉइड, वहां पे आपके पास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या निकलेगी? मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वहां पे बहुत स्ट्रांग होगी एंड यूनिफॉर्म if the point is lying inside the solenoid. ठीक है, इन चीजों को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ आया होगा सोलेनॉइड का. सी सोलेनॉइड कहने के लिए इजी टॉपिक है बिकॉज आप फॉर्मूला याद करेंगे चले जाएंगे, बट आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द सोलेनॉइड इज रियली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्कोर अराउंड 180 मार्क्स. ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन द एनटीए विल आस्क फ्रॉम यू. ठीक है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो कि हो सकता है पेपर टफ आए. अगर पेपर टफ आएगा एंड इफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक आर आस्क्ड तो हर किसी को नहीं आते होंगे क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन बच्चे बस का फॉर्मूला याद करते हैं चले जाते हैं. ठीक है, सो remember this thing, the formula, but is a formula for or rather I should say that now ये बेसिक पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इज, अब हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ अ सोलेनॉइड. हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपके पास जो रिलेशनशिप निकल के आता है, यू शुड रिमेंबर दैट थिंग, वो रिलेशन आपके पास निकल के आता है दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ N ऑफ IC. आई हैव नॉट
dealing with calculations here. I'm not dealing with the numerical part. I'm not dealing with the derivation part in this discussion, because इसकी derivation आपके लिए important नहीं है. So you should remember this formula which gives you the value of magnetic field due to a solenoid. ठीक है, यहाँ पे B क्या है, आपको magnetic field की value बताता है. And let me tell you one more thing कि यहाँ पे जो आपके पास ये n है, this n is nothing but number of turns per unit length. This is nothing but number of turns per unit length, which is equal to n by L. और यहाँ पे ये जो कैपिटल N है, this is nothing but total number of turns, and यहाँ पे जो L है ये length of solenoid है. ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग, ये चीजें आपको यहाँ से पता लग गई. सो आप इस फॉर्मुलेशन को थोड़ा सा और डिफरेंट वे में भी लिख सकते हो. इसको आप लिख सकते हो इन दिस फॉर्म. यू कैन राइट दिस रिजल्ट इन दिस फॉर्म, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट n ओवर L इंटू I. ठीक है, यू कैन राइट द सेम रिजल्ट इन दिस फॉर्मुलेशन. ठीक है, तो इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशंस कहां से किए, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू n बाय L. ठीक है, now let's just look at the special cases regarding this thing. What is the value of magnetic field? Now this is the value of magnetic field. Remember, this is nothing but the values of magnetic field at a point well inside the solenoid. These are the values of magnetic field. These are the values of, मैं यहाँ पे कैसे लिखूँ, आज यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए. This is how I'm gonna write. These are the values of magnetic field for a point inside the solenoid. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. For a point inside the solenoid. ठीक है, अब जरा सा थोड़ा सा इस रिजल्ट्स को थोड़ा और आगे मॉडिफाई करते हैं. लेट्स ट्राई टू लर्न डिफरेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग दिस थिंग. डिफरेंट रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट और आपका रिजल्ट निकल के आता है. ठीक है, फॉर अ पॉइंट नियर द एंड ऑफ solenoid, the value of magnetic field is equal to mu naught Ni by 2, which is equal to mu naught n over L 2L into I. ठीक है, ये कहाँ के लिए है, ये किस पॉइंट के लिए हमने निकाली मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज फॉर अ पॉइंट विच इज लाइंग एट द वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड. फॉर अ पॉइंट लाइंग एट द एंड ऑफ अ सोलेनॉइड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट Ni by 2. ठीक है, वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए. ठीक है, आई होप इतनी सी बातें क्लियर होगी. एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस, for the magnetic field to solenoid, the graphical representation is given as, अगर हम इसका लिए ग्राफ प्लॉट करें तो let's just say this is the value of magnetic field and here we have the axis. ठीक है, तो if let's just say here we have the magnetic field. ठीक है, magnetic field is along this direction and here in this direction we plot the value of R. तो आपकी जो magnetic field की जो representation होगी, the magnetic field will be represented like this. This will be the value of magnetic field, how this will be represented. So remember this thing. Here we'll be having minus L by 2 and here we'll be having plus of L by 2. ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक दो मेजर पॉइंट्स मैं आपके लिए और भी यहाँ पे बता देता हूँ, which will help you to calculate, which will help you to solve, get better marks in the examinations. That is number one. The first point which I'm going to tell you is, remember this thing, a linear solenoid carrying current is equivalent to a bar magnet. ठीक है, and this is your PYQ. This question has been asked in your previous year examination, तो इसको बहुत ध्यान से रखिएगा कि that a linear solenoid carrying current is equivalent to a magnet, and I'm going to write this here that this question was asked
इन योर वन ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशन एंड दिस इज योर PYQ। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दिस इज योर PYQ। इसको आप स्किप मत कीजिएगा प्लीज, इसको अच्छे से याद ध्यान में रखिएगा, आपको चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंडली आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है कि दैट द नेट फोर्स ऑन द magnetic dipole, remember this thing, examiner can ask you what will be the value of force experienced by a magnetic dipole inside the solenoid carrying current। तो वो कितनी होती है? The magnetic field, the net force experienced by a magnetic dipole placed inside the solenoid carrying current is equal to 0। इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वन ऑफ देयर previous year question। This question was asked in one of the previous year examinations। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। So I have written and I have highlighted these points। तो इन चीजों को आप एक बार ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, with this आपका सोलेनॉइड जो होता है कवर हो जाता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक जो आप इसमें कवर करने वाले दैट इज टोरॉइड, ठीक है। टोरॉइड के बारे में हमसे दो चीजें डिस्कस करेंगे, वन इज द डेफिनेशन एंड द फाइनल रिजल्ट, बिकॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग टोरॉइड इज सेम, ठीक है, जैसे आपकी सोलेनॉइड के लिए होती है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे विच आर जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन केस ऑफ टोरॉइड, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो विद द टोरॉइड। Let's just move to the next topic, that is your toroid। So let's just start with toroid। Okay, so remember toroid is nothing but a circular hollow, or rather I should say it is nothing but a hollow circular ring। It is nothing but a hollow circular ring on which large number of insulated turns of a wire are closely wound, ठीक है। अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, जो मेन बात है हम आपको टिक कर देते हैं, नथिंग बट हॉलो सर्कुलर रिंग। रिमेंबर जस्ट नॉट अ सॉलिड रिंग बट रादर अ हॉलो सर्कुलर रिंग की तरह काम करता है। एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ टोरॉइड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ टोरॉइड इज गिवन बाय B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। म्यू नॉट NI, यहाँ पे इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस रिजल्ट, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। बट देयर इज सम डिफरेंस, आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इन द प्रीवियस लेक्चर, इन द प्रीवियस टॉपिक वी स्टडीड अबाउट टोरॉइड, सॉरी इन द सोलेनॉइड, वी रिमेंबर दैट N इज नथिंग बट द टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हमने क्या स्टडी किया था? इट इज नथिंग बट अ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये चीज हमने स्टडी की थी, ठीक है। अब जरा सा इसमें एक चीज को समझते हैं, ठीक है। इस रिजल्ट्स में देयर सम डिफरेंस, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। एंड व्हाट आर दोस डिफरेंसेस, आपको टोरॉइड में ये चीज समझनी पड़ेगी कि दैट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द empty space surrounded by toroid or outside the toroid is equal to 0। उस केस में क्या था? फॉर पॉइंट्स आउटसाइड आपको कुछ वैल्यू मिल रही थी, इनसाइड आपको कुछ वैल्यू मिल रही थी। बट इन केस ऑफ टोरॉइड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिमेंबर दिस थिंग, इन केस ऑफ टोरॉइड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग द टोरॉइड, वो क्या होती है? वो 0 होती है। वैल्यू कितनी होती है? 0 हो जाती है। एंड इससे ना आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट N ओवर 2 पाई R ऑफ I, ठीक है, फॉर अ पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है। ऊपर क्या था? एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग द टोरॉइड।
मतलब टोराइड की हम पहले शेप को स्टडी कर लेते हैं तो आपको ये थोड़ा और क्लैरिटी में समझ आएगा. सो लेट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि टोराइड जो होता है इज नथिंग बट अ हॉलो सर्कुलर रिंग. इट इज नथिंग बट अ हॉलो सर्कुलर रिंग की तरह काम करता है. ठीक है. सो दिस इज लाइक जैसे दिस इज अ सर्कुलर रिंग आपको गिवन है. नॉट अ सर्कुलर रिंग बट रादर दिस हैज बीन गिवन टू यू. हॉलो सर्कुलर रिंग आपको यहाँ पे गिवन है. ठीक है. एंड फॉर टोराइड हमने क्या समझा था कि आपके क्या होता है यहाँ पे इंसुलेटेड वायर होती है. ठीक है. विच इज टाइटली बाउंड होती है. ठीक है. सो लेट जस्ट से इफ दिस इज हाउ द वायर हैज बीन बाउंडेड हियर. ठीक है. इस तरह से वायर जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है. तो इस चीज को हम समझते हैं कि इन रिजल्ट्स को आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ द वायर हैज बीन बाउंडेड. ठीक है. ये बात क्लियर होगी आपको यहाँ पे. तो हमने क्या किया कि यहाँ पे for this region the value of magnetic field will be equal to 0. Here the value of magnetic field will be 0, but for all those points which are lying inside this toroid, मतलब for all those points जो यहाँ पे shaded portion में lie कर रहे हैं, all those points which are lying inside this shaded portion, for all those points the value of magnetic field is given by mu naught n I 2 pi over r. For all these points the value of magnetic field is B is equal to mu naught n over 2 pi r n over 2 pi r into I. ठीक है. Whether symbols have their usual meaning, आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है. With this topic आपका टोराइड जो होता है वो कवर हो जाता है. And we are going to move on to the next topic, which is one of the most important topics of this chapter, that is the motion of a charged particles. Motion of a charged particle की हम बात करने वाले हैं. See, जब हमने मोशन ऑफ हमने क्या किया था, वी हैव ऑलरेडी डन व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना डील अबाउट द टॉपिक्स हाउ द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज अफेक्टेड व्हेन इट इज मूव्ड, व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. हमने फोर्स को तो स्टडी कर लिया था. नाउ वी लर्न अबाउट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके. But before we go on to the motion of a charged particle inside a magnetic field, uniform magnetic field, we must know about the motion of a charged particle inside an electric field. ठीक है. Let me repeat myself. In order for us to understand the motion of a charged particle in a uniform magnetic field, we are required to have a knowledge about how a charged particle's motion is affected inside a uniform electric field. मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने से पहले we should have the knowledge of the electric field. So हम क्या करेंगे, हम वही चीज करेंगे. सबसे पहले we gonna study about the motion of charged particle in a uniform electric field. Motion of a charged particle in a uniform electric field. In a uniform electric field. ठीक है. This is the name of the topic जिसको भी हम शुरू करने वाले हैं. The motion of a charged particle in a uniform electric field. Again, हमारे काम की डेरिवेशन नहीं है. मैं इस डेरिवेशन को सॉल्व नहीं करूंगा, बट मैं आपको स्टिल आई विल बी टेलिंग यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको हम इसमें से स्टडी करेंगे. ठीक है. सो इन ऑर्डर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हाउ अ चार्ज पार्टिकल बिहेव्स इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स जस्ट से वी हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m. ठीक है. इसको समझने के लिए लेट्स जस्ट से वी हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m. ठीक है. चार्ज पॉजिटिव q मूविंग विथ वेलोसिटी v along x एक्सिस. ठीक है. along x एक्सिस. ठीक है. अब आपके पास यहाँ पे हमने क्या किया, हमको स्टडी करते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम. डायग्रामेटिकली हम इस रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो लेट्स जस्ट से आपको क्या गिवन है, लेट्स जस्ट से दिस इज समथिंग, दीज आर द प्लेट्स ऑफ. ठीक है. जहां पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो तब का केस है. ठीक है. बट व्हाट हैपेंस इज, आपको एक बात समझनी पड़ेगी. लेट्स जस्ट से दैट हियर वी हैव द origin of
this is something. Let's just say this represents your y-axis. Let's just say this represents a y-axis. Here we have your y-axis and this is around the y-axis. ठीक है, अब हुआ क्या, let's just say these are the plates of a conductor. ये है प्लेट्स ऑफ अ कंडक्टर है जिसके अंदर आपके चार्ज को मूव करना है. अब आपके पास दो केसेस हैं, यू हैव टू केसेस. ठीक है, those two cases are कि what happens, the first case is when no electric field is applied. In the first case we have is no electric field is applied to a charged particle of mass m having charge plus q moving with a velocity v along x-axis. So समझिए, when no electric field is applied, the path कैसा होगा? If no electric field is applied, in that case the charged particle will move along a straight line which is will be parallel to x-axis. ठीक है, because initial motion of the charged particle is along the x-axis and when no electric field is applied, that means the charged particle will move in a direction which is parallel to the x-axis. So this direction will be represented by this red line. This is the initial path of the the charged particle when no electric field is applied. When no electric field is applied, this is the path of the charged particle when no electric field is applied. This is the path of the charged particle when, यहाँ पे लिख देता हूँ, when no electric field is applied. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. But what will happen? अब आपको समझना पड़ेगा तब क्या होगा when some electric field is applied. When some electric field is applied. So in order for us to understand what will be the effect of the electric field on the motion of the charged particle, let's just say now we apply the electric field along y-axis. Let's just now apply the electric field along y-axis as shown in this diagram. ठीक है, कैसे, अब उसको समझते हैं. How we gonna apply the electric field? So we will apply the electric field like this. This will be the direction of the electric field which we will apply. ठीक है, and please remember this is a uniform electric field. And what do we mean by the uniform electric field? वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं in the topic of electrostatics. So please make sure अगर आपको uniform electric field का मतलब नहीं पता है तो you just go to that video of electrostatics जहाँ पे हमने electric fields को डिस्कस किया था. ठीक है, ठीक है. Now what will happen when this electric field is applied? So let's just say this is our x-axis. ठीक है, and here we have positive, and this is the negative direction. So electric field always points from positive direction to negative direction. ठीक है, अब समझिएगा बहुत ध्यान से. We have already studied this in electrostatics that when a charged particle is placed inside a uniform electric field, it will experience a force. हमें ये चीज तो पता है कि ठीक है. So when electric field is applied, now when electric field is applied and charged particle moves inside this electric field, जब वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, then what will happen? That charge particle will experience a force. क्या बात हमें पता है, because in electrostatics we have already studied that when a charge particle moves inside an electric field, it will experience a force. ठीक है, it will experience a force. It will experience a force F is equal to Q E vector. ये वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. वी कैन राइट दिस एज F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर. ठीक है, एंड अब आपको बात समझनी पड़ेगी कि जब इसको पार्टिकल व्हेन दिस पार्टिकल ऑफ मास m विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, देन एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय क्यू ई ओवर m. एंड दिस वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन and this value of acceleration and this direction of this acceleration will be along positive y-axis. Along positive y-axis की तरफ वो क्या करेगा, along OY क्या करेगा, it will start to experience your acceleration. जब वो ये acceleration उस पे लगेगी, then it will take some time t is equal to x over v to move from point O to point B. जब क्या करेगा, उसको जब पूरा डिस्टेंस x को कवर करना है, in order for it to cover this entire distance across x axis, it will take time t is equal to x over v.
ठीक है। अब जब वो डिस्टेंस x ओवर v को कवर करने के लिए टाइम लेगा, इट विल शो सम काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन। वो क्या करेगा, एक तरह की डिफ्लेक्शन को शो करेगा अलोंग y एक्सिस। और जब आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देन यू गेट द रिलेशनशिप एज द पाथ ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 2m v स्क्वायर ओवर qe ऑफ y। ठीक है, दैट इज x square is equal to ky. Please remember this relationship for a final examination, because what they can do is they can give you a simple equation and they will ask you to find the value of the electric field, ठीक है, experienced by a charged particle when it is moving along this path। ठीक है, तो आपको वहां पे ये चीज पता होनी चाहिए, एंड दिस वैल्यू शुड बी, आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, 2mv स्क्वायर ओवर QE। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, and this is nothing but equation of parabola. This means that the charged particle will move in a parabolic path from point O to point B. So what will be the path कैसे behave करेगा आपका? Just a minute. ठीक है, तो path कैसा होगा अब आपका? तो चार्ज पार्टिकल का पाथ किस तरह से होगा अब आपका? The path will be parabolic, यानी कि if the charge particle enters from this point, if the charge particle enters from this point, then the charge particle will behave, or rather the charge particle will move like this. The charge particle will move like this up to point B, and after that, again थोड़ा गड़बड़ हो गया, I'm so sorry। ठीक है, the charge particle will move along a parabolic path up to point B, and after that it will move along a straight line। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एंड दिस पाथ अप टू OB, this path OB is parabolic and it is represented by the equation x square is equal to 2mv square over QE। यहाँ से आप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, so you should be very careful, you should remember this result। तो आपको ये चीज का एहसास हो गया, then you should remember this result that the charged particle moves along a parabolic path when placed inside an electric field। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ that the charge particle that inside the electric field, the charge particle moves on a parabolic path OB, after which, or rather I should say that on leaving the field, it moves along BC tangent, which is a tangent to curve OB। ठीक है, so this kind of question can be asked in your examination। ठीक है, तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो लेट मी रिपीट माई सेल्फ, दिस एंटायर रिजल्ट को मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। सो व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल लिया, चार्ज पार्टिकल वी प्लेस दैट चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल हैड मास m। ठीक है, सो व्हेन दैट चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक, सॉरी इन द प्लेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स, then this force will produce some kind of acceleration। This acceleration will be along the positive y-axis, along OY। Let's just say if this is your O, the particle will be along the acceleration will be along OY direction। As a result of this acceleration, when we solve for the path of the equation, we get the equation of the path as x square is equal to 2mv square over QE into y, and we place 2mv square over QE as k, and this gives us the equation of parabola। So this proves that when a charged particle of mass m and charge positive q moving with velocity v is placed inside an electric field, it will move along a parabolic path till it crosses till the point where the electric field is being applied। जहां तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है वहां तक ये पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, एंड as soon as it comes out of the parabolic path, it will move in a direction which is tangential to the parabolic path। ठीक है, तो आई होप ये जिस चीज आपको समझ में आई होगी, एंड दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, सो यहां से आपको एक रिजल्ट और देखने को मिलता है।
ठीक है, यहां से आपको एक रिजल्ट और देखने को मिलता है दैट if the charged particle moves perpendicular to direction of electric field, it describes the parabolic path, and this is the same result which we got. ठीक है, it describes a parabolic path. Again यहाँ पे हमने क्या किया था, the particle is entering in a direction which is perpendicular to the electric field. कैसे? Because the direction of the electric field is along y-axis while the electron is entering inside the electric field along x-axis. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल enters in a direction which is perpendicular to the electric field, तो आपका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, now let's just move on to the motion of a charged particle in a uniform magnetic field. Let's just move on to the next topic, that is motion of a charged particle in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. ठीक है, so अब हम इस टॉपिक को स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, मैं आपको यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जो एंटर किया है, आपको ये चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट में जहाँ पे वो एंटर किया है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि पार्टिकल इज एंटरिंग एट अ पार्टिकल इज एंटरिंग एट 90 डिग्री टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट विल द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, व्हाट विल बी द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब उसको क्या करते हो आप, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जब उसमें एंटर करता है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आप उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए लेट जस्ट से आप क्या करते हो, हम फिर से एक डायग्राम की हेल्प लेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इनसाइड इट एंटर्स इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किस तरह से उसमें एंटर करता है। ठीक है, चलिए उसको स्टडी करते हैं। देखिए, तो इसको समझने के लिए लेट जस्ट से दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, या आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम which has been given to us. Okay, ठीक है, and let's just say the magnetic field is along x-axis. The magnetic field is along, let us suppose that the uniform magnetic field is along x-axis. ठीक है, तो किस तरह से होगी मैग्नेटिक फील्ड आपकी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। ठीक है, आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी? वो कुछ इस तरह से होगी। इस तरह से होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बात आपको गिवन है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट अस सपोज a charged particle of mass m. Let us suppose a charged particle of mass m carrying a charge q is entering this magnetic field at an angle theta along OX. हम क्या कर रहे हैं? We are assuming that a charged particle is entering at an angle theta to OX. वैसे एंटर कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, जब वो थीटा के साथ एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रिजॉल्व दिस वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स। वी कैन रिजॉल्व दिस वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स सच एज v cos थीटा एंड v sin थीटा। We can resolve them into components where v cos theta is entering along x-axis and v sin theta is along y-axis.
ठीक है, तो जब आपका इस तरह से पार्टिकल की फॉर्मेशन होती है, आपका इस तरह से पार्टिकल एंटर करता है, देन यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। जब आपका पार्टिकल इस तरह से उसमें एंटर करता है, देन व्हाट हैपेंस, ठीक है, तब होता क्या है, आपका जो पार्टिकल होता है वो कुछ इस तरह से आपका पाथ को शो करना शुरू करता है। किस तरह से? इस तरह से। देखिए, वो कुछ इस तरह से मूव करना शुरू करेगा। दिस विल बी द, दिस इज हाउ द पार्टिकल विल मूव। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, अब आपको यहाँ पे एक चीज को समझना पड़ेगा, इस वजह से होता क्या है। So if this is the case where the motion of a charge particle when charge particle is moving inside a magnetic field, अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। बाकी सब चीजें हमने स्टडी कर ली, ठीक है। ठीक है, now let us suppose what we do is, let us suppose v sin theta is equal to v2। हमने यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया दैट v sin theta is equal to v2 and v cos theta is equal to v1। दिस इज समथिंग विच वी आर एज्यूमिंग, हमने ये चीजें एज्यूम कर ली यहाँ पे, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, अब हम इसको थोड़ा आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर वेलोसिटी v2 वेक्टर f will be equal to q v2 वेक्टर क्रॉस b। ये फ्रॉम द फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल वहां से निकल के आया आपके पास, एंड वी कैन सी दैट द एंगल बिटवीन v2 एंड b इज 90 डिग्री। सो दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ f एज q v sin theta into b, q into v sin theta into b। ओके, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ f, द डायरेक्शन of f will be given by, कौन से रूल से गिवन होती है? will be given by right hand thumb rule, will be given by right hand thumb rule, ठीक है। and this direction thumb rule and this direction is perpendicular to, किसके perpendicular to होगी वो? b vector and v2 vector। we have already studied about these things in our previous lectures, so please make sure if you are not able to understand these concepts, please refer to my previous lectures। आपको वहां पे ये चीजें सब समझ में आ जाएगी, because I'm not going to discuss the same topics again and again, ठीक है। तो उस पर टाइम ज्यादा लगेगा और समझाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट अब आपको यहाँ पे समझिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस टॉपिक पे आपको निकल के आता है, ठीक है। क्या निकल के आता है? एज अ रिजल्ट, रिमेंबर दिस थिंग, एज दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v2, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज दिस फोर्स is perpendicular to v2, is perpendicular to v2 vector, it cannot, remember again, it cannot change, the magnitude of v2, it cannot change the magnitude of v2 vector, ठीक है। it can only change the direction of v2 vector, ठीक है। as a result due to this force, the particle moves in a circular path, प्लीज आपको ये चीज समझनी है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। द पार्टिकल कैन नॉट चेंज इन द मैग्नीट्यूड v2, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल विल मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ ड्यू टू कौन से फोर्स की वजह से? ड्यू टू द फोर्स f, एंड दिस फोर्स f इज ड्यू टू द v sin theta,
ठीक है। तो इन एग्जामिनेशन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, देन द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन as a result of which component of velocity। तो कौन से component की वजह से करता है? that moves in a circular path due to v sin theta, due to v sin theta। इसकी वजह से क्या होता है? what happens due to this thing? इसकी वजह से आपको ये होता है कि the particle will move along a circular path, the particle will move in a circular path। this is how the particle will move, this is how the particle will move ड्यू टू दिस फोर्स। ठीक है, इसमें होता क्या है? द वेलोसिटी हमेशा किस में होगी? वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट एंड अलोंग द टेंजेंशियल टू दिस पाथ। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे किस तरह से होगी? इस तरह से। यहाँ पे किस तरह से होगी? इस तरह से। अगेन इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, एंड द फोर्स जो आपकी एक्ट करेगी दैट विल बी एक्टिंग इनसाइड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दिस इज हाउ द फोर्स विल बी एक्टिंग। ठीक है, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम यहाँ पे दैट इज इनसाइड। आई होप यू नो द मीनिंग्स ऑफ दिस क्रॉसेस। व्हाट डज दिस क्रॉस मीन्स? नहीं पता है तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। दिस क्रॉस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पॉइंटिंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है। हियर द फोर्स F, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। हियर इज द फोर्स F, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दिस फोर्स F इज गिवन बाय F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ये किसके बराबर है? BQ V2 which is equal to BQ V sin theta के बराबर है। So from this result we can calculate that V sin theta is equal to BQR over M। Please make sure आपको ये रिजल्ट भी यहाँ से याद हो। ठीक है, अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं है then you should remember this thing that for the particle to move in a circular path inside a magnetic field, the force of a centripetal force required is provided by BQV2 sin theta, or rather we should say that BQV sin theta that provides you the centripetal force। ठीक है, and from this result we can also calculate the angular velocity omega as V sin theta over R, which comes out as BQ R over M, which is equal to BQ over M, which comes out to be BQ over M। तो आपको यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना है कि how we can calculate the value of omega for a particle which is moving inside a uniform magnetic field। ठीक है, यहां से ये बातें क्लियर हुई आपके लिए? ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। इसी टॉपिक में थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। वी कैन आल्सो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर हम इसकी कैलकुलेट करने की कोशिश करें देन फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई, दैट विल बी इक्वल टू BQ ओवर 2 पाई M। Similarly, we can also calculate the time period as 1 by frequency, which is equal to 2 pi M over BQ, and these results are very important for your numerical problems। So please make sure आप इनको अपनी formula notebook में लिख लें so that at the time of revision आपको यहाँ वहाँ घूमना ना पड़े। ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। These results are very important for you। ठीक है, now let's just come to the other component। ठीक है, now before we move to the another component, the other component of the velocity, that is v cos theta, because till now we are discussing only the component of v sin theta and what kind of force it is producing। ठीक है, now let's just look at these results very carefully। Now let's just take a look at these results very carefully। जब हम इस results को बहुत ध्यान से देखते हैं, especially the result for frequency and a time period, especially for the results for frequency and time period, we see that from above results, we know that from above results we find that frequency and time period are independent of velocity, these are independent of velocity of particle। ठीक है, this means that
दिस मीन्स दैट, ठीक है, मैं आपके लिए यहां पे टिक कर देता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वी, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वी. So what does this mean? This means that all charged particles, that all charged particles with same specific charge, with same specific charge, that is same charge to mass ratio, but moving with different velocities, will complete the circular path, will complete their circular paths due to component of velocity perpendicular to magnetic field in same time. So this is a very important result. इसको आप skip नहीं कर सकते. So remember this thing. This is a very important result. And let me just explain to you कि आपको ये क्या कह रहा है. ठीक है, आप उसको समझते हैं क्या कहना चाहता है वो आपको. ठीक है, see, thing is, आपको यहाँ पे ये समझ पा रहे हो, from the results of frequency and temperature, sorry, time period, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि both these results, that both these results are independent of velocity. Both these results are independent of velocity. तो इस बात का मतलब क्या हुआ? Since both these results are independent of velocity, this implies that the frequency is dependent on charge to mass ratio, and time period is also dependent upon charge to mass ratio, Q by M. यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, Q by M दोनों पे डिपेंड कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है. दिस मीन्स दैट अगर मैं कोई भी चार्ज पार्टिकल उठा लूं, इफ आई पिक एनी चार्ज पार्टिकल विच हैव सेम charge to mass ratio, let's just say if I pick up electron or proton, or rather I should say if I pick a particle A and B and both have same charge to mass ratio, but both of them are, let's just say, are moving with different velocities, both of them are moving with different velocities, then they must complete the circular path in same time. They must complete the circular path in same time. So this kind of question can be asked for your assertion and reason, so you have to be very careful regarding this. तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा for let's just say we have let's just say the question वो आपसे ये पूछेगा if there are two particles with same charge to mass ratio but both these particles are moving with different velocities inside a magnetic field, then these particles will follow a circular path which will complete पहला क्वेश्चन ये बनेगा they will move in a circular path. दूसरा पूछेगा rectangular path, irregular path, parabolic path. तो आंसर आपका क्या होगा? They move in a circular path. Point number one. Second question he can ask from you is, when these particles of same charge to mass ratio are moving inside a magnetic field in a circular path, then the time period or rather the frequency of their motion, ठीक है, will be same या different होगी? So वो same होगी. क्यों? Because when they are moving inside a circular path, sorry, when they are moving in a circular path inside a magnetic field, and the particles have same charge to mass ratio, then they take equal time to cover the circular motion. तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और अगर आपके पास दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, दोनों सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर दोनों की चार्ज टू मास रेशियो सेम है तो दोनों को अपना सर्कुलर पाथ कवर करने में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा. इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है, ये चीजें हमने यहां तक डिस्कस कर ली. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिजल्ट. नेक्स्ट रिजल्ट आपको यहां पे समझना पड़ेगा विद अभी तक हमने स्टडी किया फ्रॉम द फोर्स ऑफ, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फोर्स ऑफ v sin theta which is perpendicular to the magnetic field. Now let's just move on to the next component, that is for component v1 which is equal to v cos theta. For v cos थीटा अब हम डील कर रहे हैं v1 इज इक्वल टू v cos थीटा से हम डील कर रहे हैं. ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा देयर विल बी नो फोर्स ऑन चार्ज फील्ड. अब आपको जब हम इसको डील करते हैं, जब हम इससे डील करते हैं, रिमेंबर इफ दिस इज द केस देन f वेक्टर विल बी इक्वल टू 0. एंड why is this is the case? y is equal to 0 क्यों होगा? बिकॉज इफ f यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा द एंगल
because the angle between v cos theta and b is equal to 0. ठीक है, एंगल कितना है 0. अब हमें पता है कि फॉर f इज इक्वल टू q v1 b that will be equal to 0 because यहाँ पे मैं और भी लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, because q v1 b sin theta, sin 0 is 0 and because theta is equal to 0, since theta is equal to 0, this implies that since sin theta is equal to 0, we have f is equal to 0. ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि हमें कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी ड्यू टू v cos theta. Since no force is acting due to v cos theta, this implies that the charge particle covers a linear distance in direction of magnetic field with constant velocity of v cos theta. ठीक है, अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं हम. यहाँ पे देखिए, अब हम स्टडी कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विथ v cos theta. ठीक है, v cos theta से हम डील कर रहे हैं. सिंस वी आर डीलिंग विद v cos theta, तो आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी. व्हेन वी आर डीलिंग विद v cos theta, तो हमें ये समझ आया कि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, तो हम यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि व्हेन वी आर डीलिंग विद v cos theta, तो फोर्स ड्यू टू द v cos theta कंपोनेंट की वजह से कितनी आ रही है, वो 0 आ रही है. दिस इंप्लाइज दैट सिंस नो फोर्स इज एक्टिंग due to the v cos theta component, because v cos theta is along v direction, v vector, तो वहां पे क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, दिस इंप्लाइज दैट द पार्टिकल v cos theta की वजह से क्या करेगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगा, जो आपको यहाँ पे ये वाला पोजीशन आपको दिखा रहा है, दैट विल मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ. वो आगे को मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में वो मूव करेगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस, इसकी वजह से ये होगा. अब नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. इसकी वजह से क्या होगा, आप आपको समझिए. ड्यू टू v sin थीटा इज इक्वल टू v1, आपका पाथ हो जाएगा सर्कुलर. ड्यू टू v cos थीटा, दैट इज v1 एंड दिस इज v2, सॉरी. ड्यू टू v1 आपका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन. That will be straight line. Now remember this result. Now remember this thing that I'm trying to say here. ठीक है. Now since both these components are acting on a same particle, this implies that the path will be both circular plus linear. मतलब आप वो घूमेगा भी और आगे भी चलेगा. सो जब यह पाथ आपका सर्कुलर प्लस लीनियर होगा, इंप्लाइज द पाथ विल बी हेलिकल. कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा. सो व्हाट इज द रीजन फॉर हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ होने का रीजन ये है कि बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू v sin थीटा, बट इट इज मूविंग along a straight line due to v cos theta. As a result, the path produced is helical path and the distance covered due to v cos theta will be equal to linear distance covered will be v1 into t, that will be equal to v cos theta into t, that will be equal to v cos theta into 2 pi m over bq. ठीक है, आई होप आपको अभी तक ये सारा टॉपिक समझ में आएगा, बिकॉज दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट दिस रिजल्ट्स, ओके, वेरी केयरफुली अगेन. अगर हम रिजल्ट्स को बहुत ध्यान से अगर हम एक बार देखते हैं, ठीक है, ठीक है. तो
हमने अभी तक सब कुछ ये स्टडी कर लिया कि किस तरह से फोर्सेस एक्ट करते हैं, ठीक है, एंड वी लुक एट दिस रिजल्ट्स वेरी केयरफुली, ठीक है, especially this result. If we take a quick look at this result and let's just say the v sin theta is equal to v, तो अगर हम यहाँ से r की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, we get the value of r is equal to mv over bq. r की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, दैट विल बी इक्वल टू r इज इक्वल टू mv over bq. इसका मतलब ये है कि if a charge particle r is proportional to v, इसका मतलब ये है कि r is proportional to v. इस चीज का मतलब क्या हुआ, यहां से हमें पता लग रहा है कि r is proportional to v. This implies that if v is less, this implies r will be less. मतलब क्या हुआ कि अगर आपका पार्टिकल धीरे चल रहा है तो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो कम होगा. वो रेडियस क्या होगा, वो कम होगा, वो छोटे रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर लॉरेंट्ज फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट वी गोना मूव टू द लॉरेंट्ज फोर्स पे हम बात करने वाले हैं. एंड लॉरेंट्ज फोर्स इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज एंड टुमारो दिस चैप्टर माइट बी कंप्लीटेड. हो सकता है कल या परसों में, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि कल ही आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाए. ठीक है, क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस चैप्टर इज वेरी बिग चैप्टर एंड वी कैन नॉट जंप टू द टॉपिक्स कि हम यहाँ ये कर लिया. दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इसमें से एंड यू नीड टू हैव अ कंसेप्चुअल एज वेल एज न्यूमेरिकल क्लैरिटी विद दिस चैप्टर. ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर. ओके, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना. तो इस चैप्टर में आप जंप नहीं कर सकते, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस चैप्टर. ठीक है, सो लेट्स लुक एट द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज योर लॉरेंट्ज फोर्स. That is our Lorentz force. We are dealing with Lorentz force. ठीक है, तो Lorentz force क्या होती है? Remember this thing. What is the Lorentz force? तो remember this thing. The Lorentz force is nothing but the force experienced by a charged particle. This is nothing but a force experienced by a charged particle. Force experienced by a charged particle moving in space where both electric and magnetic fields are present. ठीक है, जब ये सिचुएशन होगी, इफ दिस इज द केस, आपको ये समझना पड़ेगा जो आपके फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अब charge particle is moving in both electric and magnetic field. This means that the charge particle will experience both electric and magnetic field. Then the formulation की वजह से जो आपके पास Lorentz force निकल के आती है, Lorentz force will be equal to Q of E vector plus V vector cross B vector, and this is your Lorentz force. This result is known as your Lorentz force. Please remember this result because many questions can be asked from these results. Okay, so you have to be very careful with these results. Okay, where each term has their original meaning. F is force, E represents your electric field, V is the velocity, and B is your magnetic field. Okay, ये चीज clear होगी. So let's just look at some special cases regarding this. Let's just look at the special cases for Lorentz force. Let's just look at special cases. ठीक है, so the first special case जो हम इस टॉपिक पर डील करोगे, that is when V vector, B vector and E vector are collinear. When these vectors are collinear. ठीक है, if this is the case, अगर आपको समझना पड़ेगा when V vector, B vector and E vector all are collinear, this means that when these particles, when these values are collinear, this means that the charged particle, this means that your charged particle is moving parallel or anti-parallel to fields, anti-parallel to fields. ठीक है, your charged particle is moving parallel or anti-parallel to your fields. Charged particle is moving parallel or anti-parallel to fields. ठीक है, this implies that in this case the magnetic field will be equal to 0, and this implies that
एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करेगा विल ओनली बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल टू क्यू ऑफ ई वेक्टर ओवर है, क्यू ऑफ ई वेक्टर ओवर है, ठीक है, along direction of E vector, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो होगी और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है विल बी प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट विल बी अलोंग E वेक्टर, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट देयर विल बी a change, remember this thing, there will be a change in speed of charged particle, there will be a change in the speed of a charged particle along the direction of field, ठीक है। in this situation हो रहा है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट आपकी स्पीड चेंज करे, दिस इंप्लाइज दैट आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, डायरेक्शन विल नॉट चेंज, डायरेक्शन विल नॉट चेंज, बट velocity, speed, momentum and kinetic energy will change, ठीक है। सो इन चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या चीज चेंज नहीं करेगी, क्या चीज चेंज करेगी। द डायरेक्शन विल नॉट चेंज बट वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। अब आप द रियल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू व्हाई द स्पीड चेंजेस, बिकॉज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, फोर्स इज बीइंग प्रोड्यूस, फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट स्पीड इज द पार्टिकल इज चेंजिंग। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ओनली द मैग्नीट्यूड्स आर चेंजिंग, ओनली द मैग्नीट्यूड्स आर चेंजिंग, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, स्पेशल केस व्हेन v vector, b vector and e vector are all perpendicular to each other, are all perpendicular to each other, ठीक है। अब आपको यहां पे बहुत समझना पड़ेगा, ठीक है। when this is a situation where v, b and e vector all are perpendicular to each other, in this case the net force acting on the particle fe plus fm is equal to 0, ठीक है। this implies the acceleration produced on the particle will be equal because no force is being produced on the particle, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, अब आप क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही, कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रही, दिस इंप्लाइज दैट द चार्ज पार्टिकल विल पास थ्रू द फील्ड, चार्ज पार्टिकल विल पास थ्रू फील्ड, pass through field without any change in its velocity, without any change in velocity, ठीक है। विदाउट की स्पेलिंग मैं आपके लिए ठीक कर देता हूँ, ये ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा। विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एंड अगर कोई चेंज वेलोसिटी का नहीं आ रहा है, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू e ओवर b एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ योर वेलोसिटी फिल्टर, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एफ बी जाता है, एफ इज इक्वल टू एफ बी चला जाता है यहाँ से, और तभी आप इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाते हो, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो आपको आज के लिए हमें यहाँ पे कवर करना था, ठीक है। विद दिस आपका वेलोसिटी फिल्टर्स तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। फ्रॉम टुमारो वी गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा डील करेंगे विद द फोर्सेस ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो सब टॉपिक्स पे हम डील करेंगे। एंड विद we will try our level best कि कल आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाए, so that from tomorrow, day after tomorrow we can practice the questions related to this topic. Okay, on this note हम आज का टॉपिक आज हम खत्म करते हैं, ठीक है। कल हम आपसे फिर से मिलेंगे, ठीक है। so I wish you all the best, अच्छे से पढ़िए, कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आई वुड I would appreciate some kind of feedback from you. आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी बताइए। So best of luck, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं, and do like, share and subscribe. Bye bye, take care and best of luck.